Currently, I started reading my research paper and also making simultaneously notes that are in bullet point that will help me to revise what kind of paper I have already read and what I have to read now. That will help me to write down my paper and also analyze gap in research paper. Hope you will watch this video. I am reading my research paper and also that will help me to write my paper. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel
feel the fire. Heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Some days with you is paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you, can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Yeah, please just blow this flame away. And I hold on for rainy days. It feels like a decade, just please come and save me. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Fire, fire.
Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take my day off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. The right vibes and the tan line. Keep a free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Okay, hello everyone. I have completed my 3 hours of study schedule with you. How I used to study during my vacation or at the time of when I'm free, or you can say when I have weekend on Saturday and Sunday. I used to study on morning. In the morning because it will give you refreshing ideas and also it will help you to connect with your study, as I have already cleared my NET and GRF, and you also know as I'm working. So because of that I could not give full time toward my study, like I'm preparing for study, so I could not give my full focused on my research. So that's why I used to study whole day in morning. You can say from 6 o'clock to 12 o'clock I used to study like this. बहुत बार मैं काउंट नहीं करती हूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ. आई यूज़ टू मैं करती रहती हूँ, नोट्स बनाती रहती हूँ, उसमें मेरा दिन निकल जाता है. बिकॉज आज मेरे सामने कैमरा है. मैंने आज ट्राई किया है टू मेक सम न्यू व्लॉग बिकॉज यू वांट टू, मैनी ऑफ यू हैव सेड स्टडी व्लॉग बनाइए. तो अभी मैं थैंक यू एंड वन ऑफ अनदर थिंग, थैंक यू ऑल फॉर 1000 subscribers. Now we are family of 1000 students. So welcome you all in Way to English Literature family. मैं आपके साथ जल्दी ही बहुत अच्छे वीडियोस और बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी. मैं कोशिश करूँगी मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनका नेट या फिर वो अपने लाइफ में सक्सेस हो, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो यंग ऑडियंस है फ्रॉम 18 to 24 एंड फ्रॉम 25 to 34. ऑल आर यंग, और यंग हो तो आपको एनर्जेटिक भी रहना चाहिए और यू हैव टू रीच टूवर्ड योर गोल. सो ऑल द बेस्ट टू फॉर योर फ्यूचर एंड ऑलवेज डू हार्ड वर्क और बिलीव इन योर सेल्फ. हमेशा अपने आप पे बिलीव रखिए और हार्ड वर्क करिए. आई विल बी टेकिंग सम ऑफ कमेंट. जो मैं कमेंट आपको बोलती हूँ कि मैं नहीं ले सकती वो मैं लूँगी. और मेरे ईमेल पे जो मुझे ईमेल आया था जिस बच्चे का, जिस भी लड़की का मेरे पास ईमेल आया था, मैं आज उसका ईमेल लेने की कोशिश करूँगी. उन्होंने मुझे ईमेल किया था. बहुत बार बच्चे ने बोला था कि मैम आप मुझे ईमेल का जवाब नहीं दोगे. तो मैं हर एक आपके मैसेज को ढंग से पढ़ती हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ के सोच समझ के मैं कोशिश करती हूँ एट अ टाइम मैं आपको जवाब दे पाऊँ. और जब जिस भी बच्चे को मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ तो वो आप समझ ले मैं क्यों नहीं दे रही हूँ. आपको कभी ना कभी उस नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी. तो हैव अ पेशेंस, और पेशेंस रखिए, ठीक है. सो एना अर्चीज. सो आई विल बी टेकिंग वन ऑफ माई स्टूडेंट. मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप देख सकते हो सभी. यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी. मैं ईमेल किया है मुझे, उसने बोला है माई सेल्फ Archie's, I have preparing for UGC NET in English literature since last 3 months. कोई गाइड करने वाला नहीं है. So mostly I cover all things only by self study. इस बीच कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि नेट करने के बाद जॉब लगेगी कि नहीं. तो मैं इस मैसेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ. फर्स्ट पार्ट में यू आर सेइंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग सेल्फ स्टडी. अच्छा, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप ऐसा डाउट क्यों लेकर चलते हो मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी.
सेल्फ स्टडी इज़ बेस्ट। जो सेल्फ स्टडी करता है वो बच्चा बेस्ट होता है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। प्लीज़ एक्सेप्ट करिए कि जो सेल्फ स्टडी है वो उसको कोई मात नहीं दे सकता। आप खुद लर्न कर रहे हो, लर्निंग बाय डूइंग। जॉन डेवी ने क्या बोला है, लर्निंग बाय डूइंग। जितने भी साइंटिफिक स्कॉलर्स हैं, जितने भी रिसर्च हो रही है, आप पीएचडी में जाना चाहते हो, इसके बाद आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? यू विल बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर हमारा पढ़ाने, जब हमें कोई टीचर हमें पढ़ाता है तो नो डाउट हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं। पर जब हम सेल्फ स्टडी करके पढ़ते हैं तो उससे हमारा ये होता है कि हम खुद ही टीचर है और खुद ही स्टूडेंट है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो आप इसलिए तो घबराइए मत, क्योंकि मैं भी एक बिगनर थी, मैं भी बहुत बैकग्राउंड से आई हूँ। मैं एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, फ्रॉम राजस्थान। आई हैव नो गाइडेंस। मेरे ख़ानदान में ऐसा कोई नहीं था जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। आई एम ओनली अ गर्ल हु क्लियर दिस एग्ज़ाम विथ माई ओन मेहनत, खुद की मेहनत से किया है। तो आप अपने आप पे बिलीव करो, और मैं हूँ आपके साथ, आपको बताने के लिए। जो भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप बोलिए, मैं आपको बताऊँगी। इस बीच कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि नेट करने के बाद जॉब, अब सेकंड पार्ट क्या है कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी। अच्छा, लेट मी क्लियर यू ऑल दैट। जॉब बहुत सारे बच्चों के पास जॉब नहीं है नेट क्लियर करने के बाद। ये प्रॉब्लम आती है बिकॉज हर साल बच्चे क्लियर करते हैं, और ये आपके पास सर्टिफिकेट है दैट यू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। जो नेट का आपके पास सर्टिफिकेट है वो एक सर्टिफिकेट है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं। पर उसके लिए आपको खुद एक बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा, खुद को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। मान लो XYZ आपकी सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, आपकी लोकेलिटी में कोई पोस्ट आती है, आपकी लोकेलिटी में या आपके दूर कहीं आती है, XYZ में आपका कहीं भी आता है गेस्ट फैकल्टी का, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, या फिर परमानेंट की भी आती रहती है हर बार। आपको अटेंटिव, आपको बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहना पड़ेगा। वेबसाइट देखनी होगी कि कहाँ पर आ रही है, कहाँ पर नहीं आ रही है, क्योंकि कोई आपको नहीं बताएगा। मैनी टाइम न्यूज़पेपर में भी नहीं छपती है, क्योंकि अंदर ही लगा दिए जाते हैं। पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं तो जो गाइड होता है वो चाहता है कि हमारे स्टूडेंट लग जाए, जो टीचर होते हैं वो लगा देते हैं उनको, और हमें बाहर तक पता नहीं चल पाता कि यहाँ पे इस पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। बहुत ज़्यादा करप्शन होने की वजह से भी बिकॉज ऑफ करप्शन मैनी टाइम लग जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप हार मत मानिए, बिकॉज यू हैव डन। यहाँ तक हमने मेहनत की है कुछ बनने के लिए। अगर आपका पैशन है, इफ़ यू हैव पैशन फॉर दिस, यू विल फाइट और यू विल सेल थ्रू। मैं आपको बोलूँगी, आपका अगर पैशन है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो ही ये करियर चूज़ करें, और ये पेशेंस का लेवल बहुत ही हाई रखना पड़ेगा आपको। हो सकता है आपका 1 साल 2 साल 3 साल लग जाए, पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल साफ मैं बता के चल रही हूँ आपको। जॉब, फिर इसके बाद आपने थर्ड पॉइंट लिखा है, एंड वन मोर थिंग, जब नेट हो जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं। इसके बारे में सजेस्ट करिए। यस, इट्स ट्रू दैट आर्टिकल पब्लिश करवाने पड़ते हैं हमारे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर चलती हूँ। अगर कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, या कोई बच्चा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, तो उनको बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। प्राइवेट स्टूडेंट थी तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने ज़्यादा नेट पे फोकस किया। उस टाइम पब्लिकेशन पे नहीं फोकस किया, पर जब मेरा एक बार क्लियर हो गया नेट, तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि पब्लिकेशन भी करनी चाहिए, और मैंने पब्लिश भी करवाया है पेपर, और मैं उस लाइन पे चल रही हूँ। तो अगर आपके पास अच्छा गाइडेंस है तो आप पब्लिश करवाइए पेपर, आपके API स्कोर अच्छा होगा और आपको इंटरव्यू में जल्दी सिलेक्शन के चांस भी होंगे। सो इट इज़ गुड फॉर यू। जो आपका रिसर्च पार्ट है, जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं, उस पर आप पब्लिश करवाइए। इंटरेस्ट है उस टॉपिक पर, रिसर्च पब्लिश करवाइए, दैट विल हेल्प यू। एंड ये ध्यान रखिए, रिसर्च पब्लिकेशन उसी में ही करवाइए जो UGC केयर लिस्ट के अंदर आती है। प्लीज़ ऐसे आर्टिकल्स में पब्लिश मत करवाइए ज़्यादा पैसे देकर, जिसमें हमारी UGC की लिस्ट के अंदर नहीं आती। सो टेक केयर ऑफ सम ऑफ थिंग्स। और मैं इस चीज़ को अलग से कवर भी करूँगी, और हाउ आई यूज़ टू पब्लिश माई पेपर, और मैंने कैसे पब्लिश करा, मैं कैसे लिखती हूँ पेपर, ये सब भी हम कवर करेंगे आगे चल के। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो आस्क मी। ओके, अभी हम दूसरा लेंगे। दूसरा कमेंट लेंगे। म्यूज़ डॉन ने कमेंट किया है, मैम हाउ विल आई एबल टू कॉन्टैक्ट यू। आप
समझिए इस बात को। जैसे ही मैं अपने वर्क से, रिसर्च वर्क से फ्री हो जाऊंगी, मैं कोशिश करूँगी एक व्हाट्सअप नंबर स्टार्ट करने के लिए जो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करेगा मुझे, और यू कैन टॉक मी 1-to-1 कन्वर्जेशन, और जिसमें हम बात कर सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है और हम कैसे उस दिक्कत को कंप्लीट क्लियर कर सकते हैं। सो आई विल से दैट मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी मेरा वो नंबर देने की कोशिश करूँ, या आप सभी को एक नंबर प्रोवाइड करूँ जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर पाओ। देन आर्ची सेड ओके ठीक है। Again, newsroom commented, "You are my inspiration and really want to talk to you to know more about net." ओके, थैंक यू म्यूज़, ये बहुत बड़ी बात है अगर आपने ऐसे बोला है मुझे कि यू आर माई इंस्पिरेशन, इट्स मीन अ लॉट फॉर मी, और थैंक यू। और आप अगर मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा, जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे साथ बहुत टाइम तक कनेक्टेड हैं, मैं उनके लिए बहुत जल्दी एक शाउट आउट लेकर आ रही हूँ। उनको मैं अपने हैंड रिटन नोट्स गिफ्ट करूँगी। इफ़ यू आर कनेक्टेड विथ मी फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, आई विल बी गिविंग यू हैंड रिटन नोट्स ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। और अभी मैं हैंड रिटन नोट्स आपको इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ क्योंकि कमेंट करते हैं कि आपने इसको कहीं से कॉपी करके लिया या फिर कुछ। सो माई नोट्स इज़ ऑल्सो सेंड टू पब्लिकेशन के लिए भी गए हुए हैं, और जैसे ही पब्लिश होते हैं फिर जो भी ऑथेंटिकेशन का टैग लगता है तो मैं आपको वो नोट्स उन बच्चों को दूंगी जो मुझसे बहुत टाइम पहले से कनेक्टेड है, जो मेरे चैनल से बहुत समय तक कनेक्टेड है। उनको मैं फ्री गाइडेंस फॉर 1 ईयर, एंड फ्री गाइडेंस के अलावा मैं उनको अपने हैंड रिटन नोट्स भी दूँगी। सो ये मैं अपने तरफ से लेकर आऊँगी आपके लिए जो मुझसे होगा। और नाउ आई एम वेरी बिजी बिकॉज ऑफ माई रिसर्च वर्क, होप यू अंडरस्टैंड। और जितने भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो सेंड ईमेल सो दैट आई विल क्लियर योर डाउट्स, और जो भी आपके डाउट्स हो वो पूरे करने की कोशिश करूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो देखने का मन है, प्लीज़ कमेंट मी डाउन और कमेंट करिए, मैं उस वीडियो को लाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू ऑल।